Now, today we are going to start a new chapter of biology, chapter number 7, control and coordination. Now, in this chapter, we are going to start first point movement. In physics, you better know what is movement, but in biology, it is the change in position of an organism because we are talking about the animals or living beings. It is the main characteristic feature of living being because living being makes their movement. Now, purposes of movement. So there are several purposes of movement: growth related, position related, response to change in environment, for protection. There are several purposes for the movement. First one, growth related movement. Seed germination and its growth. Development of seedling and its shoot system comes out from the soil. When we uh, when we sow a seed in soil, after some days, seed germinate and seedling comes out and it grows slowly. Its growth and shoot and root systems is developed. So this is the movement. Position related movement. Running, jumping, playing, chewing, walking, etc. are not related to growth but for changing the position. So this is non related position movement. It is only our need. Now, response to change in environment. Animals or plant movement according to the surrounding environment to sustain their lives. एनिमल्स एंड प्लांट को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है. उसके लिए उसके पास कुछ ऑल्टरनेट्स भी होते हैं. सपोज हम गर्मी में अगर चले जाते हैं, गर्मी में चलते जा रहे हैं और बीच में कोई एक ट्री आ जाता है तो हमको क्या होता है कि चलो ट्री के नीचे थोड़ी देर आराम कर लो क्योंकि उसके नीचे थोड़ा ठंडा लगता है. तो ये रिस्पॉन्स टू चेंज टू द एनवायरमेंट. एज फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर प्रे. एनिमल, अगर कोई एनिमल भूखा है तो दूसरे एनिमल को मार के वो खा जाता है यार, उसको उसके कुछ पार्ट को खा जाता है. इन समर वी रन फैंस और एसीज. तो it is the movement related to the change in environment. For protection, our pupil in eyes constricted when bright light falls on eyes because it is the dangerous situation. If bright light is passed through our eyes and if it is long time, then it might be dangerous. We pull our hand instantly while touching a hot or sharp object. It is the dangerous situation. We harm it if we don't pull our hand rapidly. So this is the movement for protection. Now, controlled movement. All the movement in response to environment is carefully controlled. Each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response. तो हमको एनवायरमेंट में जो भी चेंज आता है तो हम उतना ही काम करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत है. कोई एनिमल है, भूखा हो तभी वो शिकार करता है, तभी वो हंटिंग करता है. बार बार वो हंटिंग नहीं करता. इट इज़ द कंट्रोल्ड वे से वो काम करता है. तो इसके लिए भी हमारे बॉडी में अथवा तो लिविंग बीइंग के बॉडी में ऐसे काम चलना चाहिए. तो व्हेन वी वांट टू टॉक टू अवर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड अस वी विस्पर रादर देन शाउटिंग.
हम ज़्यादा चिल्लाते नहीं है, सिर्फ हम विस्परिंग करते हैं उसको, सिर्फ फुसफुसाते हैं उसके कानों में, हम ज़्यादा चिल्लाते नहीं है। तो इट इज़ द कंट्रोल्ड मूवमेंट, द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट ट्रिगरिंग इट। तो यहाँ पे हमको बात करनी है हमारे फ्रेंड से, बराबर। और एनवायरनमेंट आसपास का ऐसा है कि ज़्यादा तीसरा कोई सुन न ले, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको कंट्रोल में, हमारा आवाज़ है वो कंट्रोल हो जाती है। सो सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द recognitions of various event in the environment followed by only the correct movement in response। तो हम वही जो इजी है उसको ही हम फॉलो करते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। तो ऐसी ये जो कंट्रोल मूवमेंट होती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। नाउ in our body there are 5 receptors, so we have tongue, nose, skin, eyes and ears. They are 5 receptors. From this environmental changes, environment, we recognize environmental changes. So we have already learned in previous years. Now working of nerve cell or traveling of nerve impulse. Nervous impulse travel through neuron, nerve fiber and synapse. तो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, वो ट्रैवल होता है और वो न्यूरॉन से पास होकर दूसरे न्यूरॉन तक जाता भी है। तो ये नर्व इम्पल्स है वो कैसे ट्रैवल होता है वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम नर्व सेल को हम देखते हैं। तो दिस इज द नर्व सेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन स्टैंडर्ड 9 ऑल्सो। तो दिस इज द नर्व सेल, दैट इज द डेंड्राइट्स, this is nucleus and this is cell body, this is the axon and they are the nerve endings. Now impulse generation, all information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells। तो हमारी स्किन के ऊपर जो ये हमने 5 जो ये बताया रिसेप्टर्स, तो उन ये रिसेप्टर्स का जो स्पेशलाइज सेल है वो ऐसे स्पेशलाइज टिप्स है जो स्टिम्युलस को एक्सेप्ट करती है। दिस इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्युलस इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप। दिस इज द डेंड्रिटिक टिप। तो ये टिप्स है डेंड्रिटिक टिप्स, ये तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट होती है और यहाँ से अंदर तरफ जाती है। एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स तैयार होती है जो आगे की तरफ ट्रैवल करने के लिए बन जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, the nerve impulse generated at the dendritic tip travels from the dendrite. The nerve impulse generated at the dendrite tip, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, travels from the dendrite to the cell body। तो डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ उसका ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि उस यहाँ पे डेंड्रिटिक एंड उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं। वो इम्पल्स है वो केमिकल रिएक्शंस थ्रू सेल बॉडी तक आती है। एट द एंड ऑफ द dendrite to the cell body and then along the axon to its end।
और बाद में सेल बॉडी से ये एक्सॉन की तरफ और अंत में वो एंड, इसके जो एंड्स है वहां तक आ जाती है. एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर या तो न्यूरोकेमिकल्स बोला जाता है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. These chemicals travel through synapse. What is synapse? The synapse is the gap between two cell or two neurons, nerve cell, two nerve cell. एक का जो नर्व एंडिंग है और दूसरे का जो डेंड्रिटिक एंड है, दूसरे का ये डेंड्रिटिक एंड दूसरे का, तो उसके बीच में एक माइक्रो स्पेस रहती है जिसको साइनेप्स बोला जाता है. यहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और केमिकल्स थ्रू ये साइनेप्स है वो पास हो जाता है, केमिकल्स उसको पास कर लेता है और दूसरे नर्व सेल के जो डेंड्रिटिक एंड है वहाँ फिर से वो केमिकल प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन से फिर से वो सिग्नल है वो डिकोड हो जाता है. यहाँ से एनकोड हो जाता है और दूसरी तरफ जाके डिकोड हो जाता है. A gap between nerve ending of an axon of one neuron or nerve cell and dendrites of the next neuron. It is the small, minute gap. And start a similar impulse in the dendrite of the next neuron or a nerve cell. तो वहाँ पे जाके फिर से एक नई फिर से वही इम्पल्स वहाँ पे भी प्रोड्यूस हो जाती है. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cell or gland. This is the muscle cell. तो ये जो एक्सॉन के जो लास्ट नर्व सेल है वो सीधा ये मसल फाइबर से कनेक्टेड है, तो उसके अंदर वो चली जाती है वो सिग्नल्स, तो इम्पल्स से अंदर चली जाती है, उसी हिसाब से ये मसल्स है वो काम करते हैं. नाउ एक्टिविटी 7.1. तो एक्टिविटी 7.1 है क्या? तो एक्टिविटी 7.1, हाँ, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट. तो वही है, तुम डिस्कस करते हैं. जनरली शुगर टेस्ट स्वीट. अभी दूसरी बात क्या है कि हम अपने नोज को एक थंब और फर्स्ट फिंगर से अगर हम दबा देते हैं तो शुगर का टेस्ट बाद में कैसा है होगा? तो शुगर का टेस्ट तो वही होगा. When we eat sugar after blocking our nose by our two fingers, we find no difference in the taste of sugar. Why? Because sugar has no smell. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. But if we block our nose with our two fingers, we feel taste but can't fully appreciate because the olfactory receptors are not stimulated. हम जब भी अपना खाना खाते हैं तो टंग के साथ साथ नोज का भी हम यूज करते हैं, क्योंकि नोज है वो स्मेल को एक्सेप्ट करती है और इससे हमारी जो स्टमक है उसका सिक्रेशन है वो अच्छी तरह से होता है, इसीलिए हम उसका आनंद ले पाते हैं. लेकिन ऐसी सिचुएशन में या तो हमको सर्दी हो गई है, कॉमन कोल्ड हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसका बराबर आनंद नहीं ले सकते. टेस्ट तो आ जाएगा लेकिन हम पूरा आनंद नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि जब कॉमन कोल्ड होती है तो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स आर कवर्ड विद एक्सेसिव सिक्रेटेड म्यूकस. तो म्यूकस से वो ढके हुए रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायरस का उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर को ढक देता है. सो हमको इसकी स्मेल नहीं आती है, इसीलिए लंच या डिनर के वक्त हम अच्छी तरह से खाना एंजॉय नहीं कर सकते. नाउ रिफ्लेक्स एक्शन. The reflex action is an involuntary response to external stimuli without the knowledge of voluntary centers of the brain. जब हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को अननोविंगली टच कर देते हैं
तो हमारा हाथ तुरंत ही वापस खींच लिया जाता है, हमको उसका पता नहीं होता, अननोविंगली ये काम हो जाता है। और उसमें वॉलंटरी सेंटर्स का, ब्रेन के वॉलंटरी सेंटर्स भी इन्वॉल्व नहीं होते, तो ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। It is involuntary instant actions without the involvement of brain for bringing about important reaction needed for survival। यहाँ पे सर्वाइवल का प्रॉब्लम, सर्वाइवल का एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये डेंजरस सिचुएशन होती है, और डेंजरस सिचुएशन होती है तो उसमें सर्वाइव होना जरूरी है, और विदाउट हार्म वो हो जाता है। इन रिफ्लेक्स एक्शन इंस्ट्रक्शन इज जनरली गिवन बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड में से ही मैसेज जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से ही उसका डिसीजन आके वो रिएक्शन हो जाती है, ब्रेन को उसका पता तक नहीं होता। सो द टाइम टू ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन इज सेव्ड। यहाँ पे टाइम सेव करने वाली बात है। अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को, अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होती और हम जब पता चले तब अपना अपना हैंड है वो खींच ले, तब तक तो ज़्यादा कुछ जल गया होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाउ एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल है, विड्रॉल अवर हैंड और लेग व्हेन एनीथिंग शार्प और हॉट ऑब्जेक्ट टचीज अननोविंगली। कफिंग, स्नीजिंग और योनिंग, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का ही रिफ्लेक्स एक्शन ही है। नी जर्क रिस्पॉन्स, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो डायाफ्राम का मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स एंड प्यूपिल ऑफ आइज, तो वहाँ पे भी प्यूपिल ऑफ आइज भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ब्राइट लाइट जब आती है तब। हार्ट बीट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग व्हेन स्मेल और साइट ऑफ फेवरेट फूड इज देयर। तो हमने कुछ देख लिया या तो स्मेल कर लिया खाने की चीज़, तो हमको मुंह में पानी आने लगता है, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे पॉसिबल बनती है, तो कि रिफ्लेक्स आर्क से पॉसिबल बनती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का, रिफ्लेक्स आर्क का जो डायग्राम है वो ये रहा। ये डायग्राम में ड्रॉ करना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं तो हमारे जो स्किन के ऊपर का जो हीट रिसेप्टर्स है वो जहाँ तक हीट्स जो सहन हो सकती है तब तक हो जाती है, लेकिन ज़्यादा हीट है वो हीट रिसेप्टर रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर, मतलब इम्पल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो इम्पल्स है वो सीधी ये सेंसरी न्यूरॉन से फ्लो होती हुई ये स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। स्पाइनल कॉर्ड का ये जो रिले ये सेंसरी पॉइंट है वहाँ तक जाती है, और वहाँ से ये रिले न्यूरॉन थ्रू ये मोटर पॉइंट पे आती है, मोटर सेंटर पे आती है, और मोटर सेंटर से एराइज होती हुई जो ये सेंसर ये मोटर न्यूरॉन है उससे थ्रू वो इफेक्टर ऑर्गन तक आ जाती है। इफेक्टर ऑर्गन मसल भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मसल है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और हाथ खींच लिया जाता है। ये पूरी एक्शन है वो माइक्रो सेकंड में हो जाती है, इसलिए यहाँ पे टाइम है वो बहुत सेव होता है और हम ऐसी डेंजरस सिचुएशन से बच जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क है वो इनकम्प्लीट पाथ फ्रॉम स्टिम्युलस टू रिस्पॉन्स, ये कोई कंप्लीट पाथ नहीं है, सिर्फ एक आर्क है, इसीलिए उसको रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि इससे रिफ्लेक्स एक्शन की एक प्रोसेस होती है। तो ये यहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया, तो ये और यहाँ तो ये
जो हमने आज शॉर्ट नोट जो डिस्कस की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क में पूछी जा सकती है, तो ये शॉर्ट नोट को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।